Good morning, everyone. Attend your call. Good morning. Attend your call. Roll number 5, Present, sir. 6, Present, sir. twelve, Yes, sir. 13, Yes, sir. 16, Present, sir. 18, 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 22, Nidhi. 22, Nidhi. Yes, sir. बेटे कहाँ आपकी क्लास होती नहीं है क्या आपको? हाँ? आज क्या सर? आज कैसे ज्वाइन कर लिया आपने? इधर ही क्लास में देखो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे आपकी सारी अटेंडेंस। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी अटेंडेंस नहीं है। अब आवाज क्लियर आ हाँ रही है? सर जी, वो थोड़ा सा वो डेंगू की वजह से हो गया था थोड़ा सा। 23, 24, नितेश शर्मा, 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, 33, प्रेजेंट सर। 34, 35L, 35L, anyone, किसी का रह गया अटेंडेंस? Anybody left? सर कल मैं प्रेजेंट थी तो अटेंडेंस नहीं लगी। आपने बोला था। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। क्यों? नेटवर्क एरर से सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा था इसलिए। Class join on the time. Okay. Yesterday I already gave you the numerical. Do you complete everyone or not? Who is completed? Nobody sent all the numerical. No. किसी ने भी नहीं किया बच्चे, क्या दिक्कत है? आपको न्यूमेरिकल सेंड किया था मैंने। किया था ना? यस सर, किया था, ट्राई किया सर, हुआ नहीं सर। तो ट्राई किया, हुआ नहीं। ऐसे आवाज आनी चाहिए। कोई बात नहीं हुआ तो कहाँ नहीं समझ में आया, और मैं भी आपको सॉल्व करूंगा। जहाँ नहीं समझ में आया था तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। और एनीवन, ओके किसी ने सर। भी ट्राई किया हो, किसी ने कुछ बनाया हो, ठीक है, तो आप अगर रिस्पॉन्स देंगे, है ना, अगर आप पढ़ाई का रिस्पॉन्स देंगे। और आपने देखा हुआ ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2007 में आया है, अप्रैल 2007 में 20 मार्क्स की इन MDU। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आया है।
और अनसॉल्व क्वेश्चन। एनी अदर स्टूडेंट, किसी ने ट्राई किया हो, किसी ने बनाया हो, ड्यू टू नेटवर्क इशू आपने सेंड नहीं कर पाए? Goes over the top of flat surface, the top of the freezer to 1.2 meter multiplied by 2.5 meter, and is purely insulated so that surface remain at 30 degrees Celsius if the temperature of air is 40 degrees Celsius. Make calculation for the maximum heat transfer by force convection from the top of the flat surface. ये क्वेश्चन, so first of all, according to the questions, we understand, draw here the diagram. ना डायग्राम से हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है और कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। First of all, draw the diagram. According to the questions, a flat surface. This is the flat surface. Okay. The dimensions are given in the flat surface, that is length and breadth is also given. We know that here the 2.5 meter, here the distance given, and here the distance given 1.2 meter. Right? Yes, Here sir. the questions given is this one, the air, huh?
passes through the air in this freezer. The temperature in between the given, the question is given, the purely insulated so that the surface is remaining at 30 degree Celsius. That means the surface of the 30 degree Celsius. So we understand, we know that this is the value is given, Ts Yes. is equals to 30 degree. Got it, my point? Yes, sir. Okay, and then we know that here the heat is to be transferred over there, that is denoted by the Q. Because we have find out, the questions is given, find out the maximum heat transfer by the force convection, not in natural convection. Okay, heat transfer for the forced convection, not in natural convection. ठीक है, अगर नेचुरल होता तो हम नेचुरल की कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चंस को। अगर हमारे पास फोर कन्वेक्शन है तो फोर्स कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चंस आपको दिए। देन if the temperature of the air is 40 degrees Celsius, so we know that here the question is given, that is the T infinity is 40 degrees Celsius. This is the as per the questions is given, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. We have calculate, we know that according to the questions is, we know that the force convection, force convection. और क्या चीजें दिया हुआ है फोर्स कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग? द वैल्यू ऑफ the moving at, that is 0.15 meter per second, that is given as per the questions, that is the V is given 0.15 meter per second. So we know that RE, we already understand RE, RE equals to होता है रो वी एल अपॉन म्यू, हमें ये चीजें मालूम है ना? और हमें ये चीजें भी मालूम है कि बल्क मीन टेम्परेचर क्या होगा, मीन टेम्परेचर। तो मीन टेम्परेचर क्या होगा? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना? Yes, टी sir. एस प्लस टी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 2. So we know that you can write over there air property are to be taken as bulk mean temperature in this case directly मैं लिख रहा हूँ, है ना? Directly write down, this is 40 plus 30 divided by 2, that is equals to, we know that 40 plus 30 is 70 divided by 2, 35 degrees Celsius. We have calculated in the Kelvin is 308 Kelvin. You all understand? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir.
Okay. And we know that if the according to these questions we have find out, है ना, earlier already we know that कि आपको मैंने ये डाटा आपको पहले भी दिया हुआ था कि अकॉर्डिंग टू द फोर्स कन्वेक्शन में मैंने बताया था आपको कि जो हमें डाटा है वो डाटा बुक के अकॉर्डिंग, तो रो की वैल्यू उस टाइम मैंने आपको बताया था 1.1465 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, म्यू की वैल्यू बताया था 1 पॉइंट, अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो हम उतना ही लेंगे, अगर नहीं दिया है तो वी फाइंड आउट द डाटा। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस अगर नोट डाउन किए होंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी डाटा 0266। इसी कारण से मैंने क्वेश्चन दिया था कि आप अगर नोट डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और पी आर की वैल्यू 0.7। राइट, तो हमें आर ई निकल जाएगा डायरेक्टली। यस सर। आर ई आ जाएगा 1.1465 मल्टीप्लाई बाई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 2.5 अपॉन 1.889 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5। मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट में लिखता जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू आर बेटर अंडरस्टैंड, इसलिए मैं डिटेल नहीं लिख रहा। तो क्वेश्चन आपको दिया था मैं होमवर्क के लिए। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि कौन सा फ्लो होगा ये आप बताइए। 0.2276 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 is greater than 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5। अब आप बताइए कौन सा फ्लो ऑफ द डायरेक्शन है। कौन सा फ्लो ऑफ द डायरेक्शन है? लैमिनार सर। लेमिनार। ओके, यू अंडरस्टैंड लेमिनार। So is laminar according to this data। तुषार कनौजिया के अलावा और भी कोई स्टूडेंट है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एवरीवन फ्रीडम है कि आपको जहां नहीं समझ में आ रहा है, ऑल ऑफ यू माय रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पूछें, अदरवाइज आप फाइनल एग्जाम में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपकी लैक ऑफ द प्रैक्टिस होगा। मैं 100% आपको बता रहा हूँ, इफ द लैक ऑफ द प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप ढूंढेंगे कि मुझे कौन सा थ्योरी क्वेश्चंस मिल जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप नहीं टच कर पाएंगे। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनम्यूट करके आप जहां भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, आप क्वेश्चंस को पूछें। अब लिमिनार फ्लो है तो वी नो दैट कि हमें क्या निकालना होगा, एन यू। एन यू इक्वल टू होता है एच एल अपॉन के, होता है ना। अब एच तो हमें मालूम नहीं है, एच हमें निकालना पड़ेगा। यस दैट सर। इज प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने निकाला था 664 आर ई की पावर 0.5 पी आर की पावर 0.334। एच हम निकाल लेंगे यहाँ से,
H इक्वल टू हो जाएगा K बाई L मल्टीप्लाई बाई 0.664 RE की पावर 0.5 ER की पावर 0.334. So we have calculated, already we know that this is the RE की वैल्यू हमें मालूम है, जो RE की वैल्यू हमने पहले कंसिडर किया, और PR की वैल्यू हमें मालूम है. तो इसकी वैल्यू को पुट कर दें, तो we know that we can write over that because H equals to 0.266 upon 2.5 multiply by 0.664 multiply by 0.2276 multiply 10 to the power 5. एक RE का वैल्यू that power is 0.5 multiply by 0.7 की पावर 0.334. ये होगा H की वैल्यू. अभी इसको कैलकुलेट कर लीजिए. Yes. That is calculated is 0.946 क्यूब मीटर स्क्वायर केल्विन. ओके. राइट. यस यहाँ तक समझ में आ गया. डन. अब हमें क्या निकालना है फाइनली? Q. तो Q इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चंस आपने किया था, सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है. H A डेल्टा T. डेल्टा T कितना होगा? -10 से, मतलब नेगेटिव में. नहीं, डेल्टा T 40 माइनस 30. टन हो जाएगा. H की वैल्यू हमने निकाल ही रखा 0.946 मल्टीप्लाई बाई एरिया में मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10. दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी में तो सर हम TS माइनस T इनफाइनाइट करते हैं ना सर. हाँ, TS माइनस T इन्फिनिटी लेते हैं, पर नो Yes, sir. इन दिस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग T इन्फिनिटी माइनस TS नहीं है, बिकॉज माइनस में कभी भी नहीं जा सकता, बिकॉज जब फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है तो माइनस में अगर चला गया तो इसका मतलब हीट तो होगा ही नहीं. कोई भी Okay. Yes, ना sir. हीट ट्रांसफर जब होगा तो माइनस में अगर चला गया तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता. तो दैट्स वाई ऑलवेज जो है हम जो यूज करते हैं दैट इज यूज द वैल्यू ऑफ TS माइनस T इन्फिनिटी. ठीक है. तो बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम क्या लेंगे? T इन्फिनिटी माइनस TS. इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 28.38 वाट. ये आंसर है. कितना काम था ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में, इसी को एलोबरेट करके आप, क्योंकि मुझे समझाना था, है ना, मुझे सॉल्व करके नहीं दिखाना था, मुझे समझाना था, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में ये आपको समझाया. अब आप इसको एलोबरेट करके लिख सकते हैं. नाउ यू आर सर इसे अंडरस्टैंड. हम GRPR से भी कर सकते हैं सर, जो हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन में लगाते हुए आ रहे हैं. देखिए, जब वो हम कब लगा रहे हैं, जब आप क्वेश्चन आपने किया है, जब हम नेचुरल कन्वेक्शन, यस, जहाँ पे क्या करना है हमें, फोर्स कन्वेक्शन फोर्स में दिया हुआ है. तो हमने पूरी थ्योरी में, हमने जो पूरी कन्वेक्शन में हमने 3 तरह का हमने कन्वेक्शन पढ़ा ना, पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, जब मैंने कन्वेक्शन पढ़ाया था, Yes. जब शुरू किया था.
जब मैंने आपको कन्वेक्शन बताया था, तो दैट इज द कन्वेक्शन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कन्वेक्शन आपको मैंने पढ़ाया। इतने इतने टाइप्स के आपके कन्वेक्शन होंगे। थ्री टाइप के आपको मैंने बताया। कौन सा बताया था? तीन चीजें बताया, रिकॉल करा देता हूँ। पहला जो हमने टॉपिक जो कवर किया था, वो हमने 3 सेक्शन में किया था। पहला फर्स्ट टॉपिक हमने जो किया था वो फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो किस में हो रहा है? लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो, ये था। दूसरा मैंने आपको सेक्शन कराया, दूसरा चीजें कराया मैंने आपको कि फोर्स्ड फ्लो, फोर्स्ड कन्वेक्शन। और तीसरा चीजें जो मैंने आपको बताया इसमें, तीसरा चीजें बताया वो नेचुरल फ्लो। नाउ आपको बेटर अंडरस्टैंड, अब याद आया क्या होगा आपको, यस सर। है ना? जो फोर्स में मैंने आपको फोर्स फ्लो में बेसिक चीजें बताया, बेसिक डिफिनेशन बताया, कन्वेक्शन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो कैसे हम काउंट करते हैं, है ना, मोमेंट हम कैसे लेते हैं, उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द कंटिन्यूटी एक्सप्रेशन बताया, है ना, एनर्जी इक्वेशन बताया आपको। उसके बाद बेसिक सॉल्यूशन आपको बताया कि बाउंड्री लेयर्स का क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्री लेयर्स बताया था मैंने आपको, राइट। और एक वॉन कारमैन की और इंटीग्रल इक्वेशन हम कैसे हम डिराइव करते हैं वो बताया आपको, सारे फ्लूइड फ्लो में बताया। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बताया, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बताया, जिसमें कि आपका लोकल और एवरेज, ये सारी चीजें मैंने आपको कराई, राइट। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं यस बनता है, इसका बेसिक का कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता ये इसमें। दूसरा चीज जो मैंने आपको कराया फोर्स कन्वेक्शन में, फोर्स कन्वेक्शन में वेलोसिटी, है ना, बीएल कॉन्सेप्ट, थिकनेस, थर्मल कॉन्सेप्ट, थर्मल बीएल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें बताया था आपको। थिकनेस की सिग्निफिकेंस बताया, केस स्टडी बताया, जो कि केस स्टडी थ्रू द प्लेट की हीट ट्रांसफर होगा कैसे, है ना, कि नंबर ऑफ प्लेट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जिसमें कि आपका डिफरेंट प्लेट्स है या सर्कुलर ट्यूब है, तो उसमें आपकी जो रिनॉल्ड्स नंबर होगा वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, रिनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में। इसकी यस न्यूमेरिकल सर। भी बताया, और फिर बताया मैंने डायमेंशनल एनालिसिस भी बताया था कि 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा, तो कन्वेक्शन कैसे होगा, और इसके बाद इसकी पेनिंटल नंबर, नोलार्ड्स नंबर, है ना, स्टेटल नंबर, ये सारी चीजें बताया था। बी आर सी आर जो है आपकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें बताया था। फोर्स कन्वेक्शन जो बताया था आपको लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में, इसकी फ्लो थ्रू द पाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, हाइड्रोलिक डायमीटर की क्या कॉन्सेप्ट है डीएच की, और मीन टेम्परेचर, मीन फिल्म टेम्परेचर क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी डिराइव द एक्सप्रेशन कैसा होगा, और विथ न्यूमेरिकल। कराया था या नहीं कराया था? ये मैंने आपको अपने जो माइंड में मुझे याद आ रहा है, मैं वो रिकॉल करके आपको बता रहा हूँ। इतने सारी चीजें यही आपके सिलेबस में है, यस या नो? यस सर। और नेचुरल में तो आपको मालूम ही है, अभी याद ही होगा। नेचुरल कन्वेक्शन में आपको याद होगा अभी, यस यार। याद है?
जस्ट 2 मिनट, मैं एक बार सिलेबस ओपन कर लेता हूँ, 1-2 मिनट्स दीजिए। और सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सेकेंड यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपका थर्ड यूनिट बचेगा, रेडिएशन। जस्ट a minute। इस चैप्टर में किसी को और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो बेटे, जब तक मैं सिलेबस ओपन कर रहा हूँ। Who is gone? कोई चला गया? According to your syllabus, you can see over there. Heat transfer, convection, basic equation, boundary layers, force convection, external, internal force, natural convection, transfer, heat transfer, dimensions, layers, parameters of the force and free convection, है ना? Transfer coefficient for the force convection, approximate solution, laminar, boundary layer equation, momentum and energy equation for the both internal, external, estimated the transfer the rate of laminar and turbulent flow situation using the approximate acceleration and free force convection. Got it my point? क्लियर है? ये सारे आपको ये सिलेबस मैंने सेकेंड यूनिट का कवर करा चुका हूँ। ओके सर। बताया ना अभी आपको, लिख के बताया कि 3 तरह की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन किया। जो जो चीजें मैंने इससे पहले बोला होगा तो ये सारी चीजें मैंने बोला जो मुझे याद आया था। अब भी किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी भी आपके पास 3 मिनट्स है, बिकॉज न्यू यूनिट्स चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि व्हाट इज द रेडिएशन, है ना? रेडिएशन में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है थर्ड यूनिट में। आपके टोटल 6 यूनिट हैं, तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? थर्ड यूनिट में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट कि हमने कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया और रेडिएशन पढ़ लिया। ये मेन 3 चीज़ें हैं हीट ट्रांसफर पर। जब ये चीज़ें पढ़ लिया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको उसी का एप्लीकेशन है, राइट? तो अनदर टॉपिक इज रेडिएशन। इन रेडिएशन में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? इन द रेडिएशन में हम पढ़ेंगे इंट्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन विथ मटेरियल, उसकी डिफिनेशन, डिडक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टीज, स्टेफन
बोल्टमैन की जो लॉ है वो हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। ब्लैक एंड ग्रे बॉडी रेडिएशन की ब्लैक बॉडी एक्चुअल में रेडिएशन जो बॉडीज होती है वो 5 टाइप की होती है। मैं डिस्कस आपको करने के लिए बता रहा हूँ। और जो बॉडी है वो 5 टाइप्स की होती है, जो सरफेस की बॉडी। ब्लैक बॉडी हो सकती है, वाइट बॉडी हो सकती है, ग्रे बॉडी हो सकती है ना, ट्रांसपेरेंट बॉडी हो सकती है, ठीक है, ओपाक्यू बॉडी हो सकती है। ये 5 बॉडीज होंगे, राइट। तो आपने ब्लैक और ग्रे तो यहाँ लिखा है, पर मैं आपको 5 चीजें आपको बता रहा हूँ। 5 बॉडीज की रेडिएशन हो सकती है, राइट। कैलकुलेशन इसकी करना है, रेडिएशन की कैलकुलेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर बिटवीन द सरफेस बाय यूजिंग द रेडिएटिव प्रॉपर्टी, व्यू फैक्टर्स एंड रेडियोस्टेबिलिटी ऑफ मेथड्स। ये मेथड्स क्या क्या होते है ना, राइट। ये चीजें हम पढ़ेंगे, दैट इज इक्वल इन द रेडिएशन। कि रेडिएशन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी बॉडी सरफेस, इसकी प्रॉपर्टी रेडिएशन की, बोल्टमैन एंड रेडिएशन जो रियल जो फैक्टर है रेडिएशन का वो हम पढ़ेंगे। बट इट किसी को कोई Okay, क्वेश्चन sir. पूछना हो, किसी का अटेंडेंस रह गया हो, तो अभी भी आप पूछ सकते हो, लेस देन 1 मिनट। टुमारो विल बी स्टार्ट द न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट, 3rd यूनिट। रेडिएशन आपने नाम सुना होगा, जब हम मेडिकल टर्म्स में जब हम एक्सरे वगैरह करते हैं ना, रेडिएशन आता है, बोलते हैं ना कि MRI और कुछ ऐसी चीजें जो रेडिएशन के थ्रू बॉडी में रेडिएशन होता है, रेडिएशन के थ्रू हमें से एक्सरे मिलता है, बोलते हैं ना। रेडिएशन बहुत आसान है, रेडिएशन आपने सुना है। और